learn surface tension. What is mean by surface tension? Then after, how can you determine surface tension by using stalagmometer in our laboratory? And this experiment is asked every time in your examination. So you must have to be clear with each and every procedure, preparation, theory, and why we are performing this experiment. And in today's class, we will learn all these things in detail. So to explain this surface tension phenomena, first of all, I'm going to load the slide. Wait, still slide is loading. Yes. So as you can see on this slide, what is mean by surface tension? Surface tension is denoted, first of all, surface tension term is denoted by the notation gamma. It is denoted by the notation gamma, and whatever this gamma is here, this gamma is nothing but the surface tension, and this surface tension phenomena is nothing but which or is defined as simply the forces causes the molecules on the surface of a liquid to be pushed together and to form a layer. मतलब क्या, देखिए यहाँ पर आप लोग इजीली ये ऑब्जर्व कर सकते हो डायग्राम में, जिसको कि मैं पेन की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. देखिए ये जो कुछ भी हमारे सरफेस टेंशन है, इस सरफेस टेंशन को मैंने अभी अभी बताया आपको कि गैमा से हम उस सरफेस टेंशन को बताते हैं गैमा. व्हाट इज दैट? गैमा. गैमा असं काढायचं. So whatever this gamma is there, this gamma is defined by the term, or it can be explained as the forces that causes the molecules. The forces, ये देखो ये जो forces है आपके molecules को, देखिए ये जो सारे forces है आपके molecules को जो cause हो रहे हैं या फिर आपके molecule को pull कर रहे हैं या वो पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, एक ही साथ में पुश कर रहे हैं नीचे सारी ओर से, मतलब नीचे की ओर वो पुश कर रहे हैं टुगेदरली टू फॉर्म अ लेयर. टू फॉर्म व्हाट? अ लेयर. एंड इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन ऑन द surface of a liquid. But see, now you may ask me, ma'am, surface tension is the phenomena which can is it, or will it be caused in the bulk of your that liquid phase? So its answer is no, because surface tension is the surface phenomena which can be occurred at the upper layer of your liquid. And now these, whatever these blue colored arrows are there, these blue colored arrows, by through this you can say or you can observe very easily, ये सारे molecules push कर रहे हैं आपके liquid upper layer के लिक्विड को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी ओर. ओके, सो बट अगर से आप यू लुक टुवर्ड्स द डायग्राम एंड नाउ एक एग्जांपल के लिए हमने बल्क का मॉलिक्यूल लिया है. बल्क मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सेंटर पॉइंट में है या फिर जिसको कि हर एक दिशा से, अच्छे से देखो ये ब्लू कलर जो हेडेड एरोज है उनको देखो, सारी की सारी दिशाओं से आपको आपके एक मॉलिक्यूल को खिंचा हुआ है. मतलब वो जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर देखो लिखा है इंटीरियर मॉलिक्यूल विच इज पुल्ड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस. ये क्या कर रहा है? ये मॉलिक्यूल इज पुल्ड, ये मॉलिक्यूल इज पुल्ड बाय ईच एंड एवरी डायरेक्शन. बट ये जो है ये किससे पुल होते हैं ये मॉलिक्यूल्स? तो ये मॉलिक्यूल्स पुल होते हैं सिर्फ कुछ ही आपके डाउनवर्ड साइड से और कुछ राइट एंड लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल्स की तरफ से, एंड विच इज फॉर्मिंग योर लेयर. नाउ आप अगर एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता है, नाउ as after some time I'm going to tell you experiment which by through which you can determine surface tension of your liquid, any liquid which is given liquid, and it before that experiment you must have to know what is the unit of your surface tension.
सो सरफेस टेंशन के दो यूनिट्स हो सकते हैं, मतलब सीजीएस सिस्टम में और यूएसआई सिस्टम में। तो देखिए, जब कभी भी सीजीएस और एसआई सिस्टम होती है, जब कभी भी सीजीएस सिस्टम होती है तो आपके सरफेस टेंशन का यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर। क्या यूनिट होता है? डाइन पर सेंटीमीटर, क्योंकि फोर्स एक्ट करता है सरफेस पे जो कि राइट एंगल्स विद द आपके लेंथ या फिर वो लिक्विड पर होता है। मतलब क्या, एक आप क्या होती है वहां पर फोर्सेस होते हैं, वहां पर लेंथ होती है। मतलब मेजर क्राइटेरिया इज योर forces and all. That is why your CGS unit is CGS unit or CGS system unit is dyne per centimeter, whereas SI system में आप उसको कन्वर्ट करते हो न्यूटन पर मीटर में, न्यूटन पर मीटर। अब देखो, ये जो कुछ भी अब आपके ये सरफेस टेंशन है, अब इसमें आपके SI यूनिट इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, and whatever this Newton per meter is there, it is nothing but the SI unit। आपको एग्जाम में अच्छे से देखना है वो CGS यूनिट पूछ रहे, SI यूनिट पूछ रहे, या फिर दोनों भी देख करके A एंड B दे रहे, या फिर ये तीनों देख करके D ऑप्शन में वो लोग आपको ऑल ऑफ द अबव देने वाले हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन अगर ऐसे अभी जो मैंने बोला CGS यूनिट, SI यूनिट, A ऑप्शन CGS, B ऑप्शन SI यूनिट, A ऑप्शन CGS यूनिट दिया, B ऑप्शन ऐसा यूनिट दिया, फिर सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी दिया, अगर से बोथ ए एंड बी देने के बाद में डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दिया, तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी द लास्ट वन, D1। कौन सा ऑप्शन विल बी करेक्ट वन? लास्ट वन। क्यों? क्योंकि ये सीजीएस और एसआई यूनिट है, मतलब बोथ आर दियर। आणि मग अशा वेळेस तुम्हाला प्रत्येक एंड ऐसे टाइम पे आपको हर एक ऑप्शन पता होना बहुत ही जरूरी है। अब बात आती है कि आपके सरफेस टेंशन पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, is there is any effect of temperature on your water, on your liquids? So yes, there is effect of surface tension on your liquid. Also this question they may ask you in for your MCQ, that might be theory, that might be practical। अगर से आपको प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको ये जो कुछ भी सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या होता है? सरफेस टेंशन कम कम होता है जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करो। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, हाँ यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका वाटर है, पहले यहाँ पर दिखाती हूँ, आपका वाटर है एंड इस वाटर का, पहले तो वाटर है, इस वाटर का ये कितना टेम्परेचर है? 20 डिग्री सेल्सियस को कितने डिग्री को? 20 डिग्री को 72.75 इतना सरफेस टेंशन था। बट अगर से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसकी वैल्यू देखो 69 पॉइंट समथिंग, मतलब वो जो आपकी वैल्यू है वो वैल्यू कम हुई या ज्यादा हुई? तो वो ऑब्वियसली अगर से आप डिजिट देखो तो वो कम हो चुकी है। अगर से आप 60 डिग्री पे ऑब्जर्व करो तो वो फिर से और 66.18, मतलब वो कम हो गई है। आप लोग नहीं तो बोलोगे मैम 19 कैसे बोल रहे हो आप? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही राउंड कर रही हूँ। एंड नाउ 80 डिग्री पे 62.61 इतना आपका डाइन पर सेंटीमीटर बोलो या फिर न्यूटन पर मीटर बोलो, बट यहाँ पर आपको सीजीएस यूनिट में ये सारे वैल्यूज आपको दिए हैं। किस यूनिट में दिए हैं? फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, सीजीएस यूनिट में वो लोगों ने आपको ये वैल्यूज दिए हैं। देन आफ्टर अगर से आप नीचे नीचे की तरफ जाओ तो दूसरे दूसरे लिक्विड से, लाइक जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, एसीटोन है, टोलिन है, बेंजीन है, तो ये सारे के सारे लिक्विड्स में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका सरफेस टेंशन क्या होता जाएगा? एज गामा, एज सरफेस टेंशन एज यू इंक्रीज द रुको मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ इसको, थोड़ा सा पेन डार्क करके, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो और आपको ये जो टर्म है अच्छे से समझ में आए। एज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, गामा मतलब सरफेस टेंशन वैल्यू डिक्रीजेस। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम उसकी सरफेस टेंशन वैल्यू, उतना कम मतलब अब बहुत कम नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। बट जैसे ही आप चेंज करते हो आपके लिक्विड का क्या बोल सकते हैं हम, टेम्परेचर या फिर उसको गर्म जितना करते हो आप, उतना ही आपके उस लिक्विड का सरफेस टेंशन वैल्यू इज गेटिंग चेंज। आई थिंक यू गाइज आर
clear with the surface tension phenomena, which is denoted by the notation gamma, which is denoted by the notation gamma. Now, some of you may ask me, ma'am, is it important for us for our examination or for our chemistry purpose? Yes, it is very very important, because anywhere, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप जब कभी भी केमिस्ट्री में आओगे तो सरफेस केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इस टॉपिक में आप लोगों को ये पता होना बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद में बात हम करते हैं सरफेस टेंशन। तो हमें पता चल चुका है अब क्या होता है सरफेस टेंशन, क्या होती है सरफेस टेंशन की, मतलब कि सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। बट अब बात आती है हमारे इस सरफेस टेंशन को लैबोरेटरी में डिटरमाइन करने की। तो देखिए, ये जो कुछ भी अब सरफेस टेंशन हम लैबोरेटरी में निकालते हैं वो दो मेथड से निकालते हैं। पहली मेथड इज कैपिलरी राइज मेथड, wait a minute, first method is a capillary rise method and second one method is number of drops method. अब capillary rise method मतलब क्या? अब देखिए, जो कुछ भी आपका सरफेस टेंशन होता है, कैपिलरी राइज मेथड मतलब क्या? कैपिलरी मतलब ही क्या वो पहले समझाती हूँ आपको। कैपिलरी मतलब ऐसी ग्लास की, क्या यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ मैं, कैपिलरी मतलब ऐसी ग्लास की स्मॉल सी एक कैसे बोलूं, इंजेक्शन नहीं देते क्या, उसकी नीडल कैसी बारीक होती है, थोड़ी सी उससे बड़ी आपकी वो कैपिलरी होती है, जिसमें से लिक्विड तो पास हो सकता है बट वो एक सर्टन अमाउंट में पास होता है। बट इंजेक्शन की जो सुई म्हणा किंवा ती काय म्हणतो आपण, what we can say, that needle. Okay, so whatever that needle is na, that needle is quite smaller than that of capillary, but आप समझ जाओ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि निडल से ही इंजेक्शन जो लिक्विड्स वो हमें इंजेक्शन जो इंजेक्ट करने वाले होते हैं उसमें से आता है। इससे आप कोरिलेट कर सकते हो कि आपकी ये जो कुछ भी कैपिलरी होगी, वो कैपिलरी से आपका लिक्विड विल गेट पास ओवर, यहाँ से लिक्विड इजीली पास हो सकता है। अब बात आती है कि मैम इसमें क्या होता है होगा इस कैपिलरी राइज मेथड में। अब देखो, कैपिलरी राइज मेथड मतलब क्या होता है, अगर से आपकी कैपिलरी, या फिर मैं एक बात समझाती हूँ आपको, जब कभी भी आप बात करते हो ना कि कैपिलरी राइज मेथड बोले तो कैसे बोलूं, एक आधा आपका लिक्विड है, ओके, तो वो जो लिक्विड है उस लिक्विड में आप समझ लो कि हॉलो पाइप आपने रखा है, मतलब कि एक पाइप नहीं रहता क्या आपके घर पे, आप करके देखो ये एक्सपेरिमेंट। ओके, तो कैपिलरी छोटी होती है बट ये आपको समझने के लिए आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखो। एक हॉलो पाइप, मतलब वो पीवीसी पाइप वगैरह आते ना, तो उसको लो और एक आध बकेट में पानी लेकर के देखो। अब उस बकेट में जो पानी है उस पानी की हाइट कि वो रेफरेंस से आपकी उस पाइप में वाटर का जो कुछ भी हाइट है, मतलब कि वाटर जो कुछ भी एंटर होगा उस पानी बकेट के पानी के हाइट के हिसाब से पानी एंटर करेगा आपके इस कैपिलरी में। एंड ये जो कुछ भी फंक्शन फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, आप लोग बोलोगे मैम ये पाइप बोल रहे हो, निडल बोल रहे हो, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, एक्चुअली कैपिलरी कैसी दिखती है? तो कैपिलरी इज वेरी वेरी smaller one which is made up of glass, but हम उसको ऐसे डिफरेंटली, या फिर मैं आपके साथ में फोटो शेयर करती हूँ कैपिलरी के, ओके, बट नॉट नाउ ऑन गूगल क्लासरूम है ना फोटोज, वो दे दूंगी मैं आपको। तो देखिए, अब ये जो कुछ भी आपकी ये कैपिलरी राइज मेथड है, इसमें आपका वाटर राइज होगा। तो उसको अब डिटरमाइन करने के लिए, या फिर ये जो कुछ भी मेथड है, ये मेथड एक्चुअल में हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कौन सी मेथड है ये आप लोग जस्ट समझ जाओ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्या है ये कैपिलरी मेथड? तो कैपिलरी मेथड से ये जो कुछ भी अपवर्ड को फोर्स होता है वो फोर्स इज 2 पाई गामा cos थीटा। व्हाट इज दैट? 2 पाई गामा cos थीटा, वेयर r is what?
where r is nothing but the radius, gamma is nothing but the surface tension, cos theta is nothing but your angle. and अब ये जो कुछ भी एंगल है, अब ये जो कुछ भी एंगल है, ये एंगल, अब ये जो कुछ भी एंगल है, ये एंगल आपको आपके लिक्विड की थीटा वैल्यू बताता है। मतलब ये एंगल देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ, तो ये जो कुछ भी एंगल्स है, ये एंगल्स आप लोगों को इजीली आप डिटरमाइन कर सकते हो इस पर से। इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस तो आने वाले है ही नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं। फिर भी मैं एक बार समझा रही हूँ आपको। तो अब बात आती है कि डाउनवर्ड फोर्स ऑन द लिक्विड कॉलम, मतलब कि ये तो हो गया अपवर्ड फोर्स के बारे में। अब बात आती है डाउनवर्ड फोर्स के बारे में। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा इस पर? तो इट इज नथिंग बट h pi r square dg। हाउ मच इट इज? h pi r square dg। फिर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, मतलब नीचे से और ऊपर से जो भी फोर्सेस लगने वाले हैं उनको हम इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, मतलब एक दूसरे के सेम ही होंगे, इसीलिए वो लिक्विड इजीली लेयर के फॉर्म इजीली रह पा रहा है वहां पर। तो अपवर्ड फोर्स इज 2 पाई गामा r एंड डाउनवर्ड फोर्स इज h पाई r स्क्वायर dg। सो अब हमें क्या निकालना था? गामा वैल्यू निकालनी थी। क्यों? क्योंकि गामा इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन। सो गामा इज इक्वल्स टू द h r dg by 2, h r dg by 2। and how much it is? it is measured in dynes per centimeter। dynes per centimeter, आप dynes per centimeter को ऐसे भी लिख सकते हो, पर सेंटीमीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना। ओके, एंड ये डाइंस पर सेंटीमीटर है, मतलब आप लोग मुझे बोलोगे क्या अब कि आपका ये जो कुछ भी सरफेस टेंशन वैल्यू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये सरफेस टेंशन वैल्यू is simply measured in CGS unit or SI unit? Yes, you are correct. It is measured in CGS unit. Konta unit? CGS unit. So, after this, now, ना, अब ये जो कुछ भी आपका लिक्विड है उस कैपिलरी में आ गया। अब इसमें आने के बाद में अब बात आती है, ये तो आपकी कैपिलरी ट्यूब में सरफेस टेंशन हमने बताया कैसे होगा, इसमें एंगल्स क्या क्या होते हैं वो बताया, अपवर्ड फोर्स कैसे आता है, डाउनवर्ड फोर्स कैसे होता है, कितना होता है, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली कैपिलरी राइज मेथड में। अब इसके बाद में बात आती है कि ये जो कुछ भी आपके क्या बोल सकते हैं हम, कैपिलरी राइज मेथड है। इस कैपिलरी राइज मेथड से हमने क्या डिटरमाइन किया? तो हमने यहाँ पर डिटरमाइन किया कि कितना आपका गामा वैल्यू होगा। अब ये जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स में आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे दे दूंगी, सेम एज दैट ऑफ गामा वैल्यू उन्होंने दी है। एक फॉर्मूला है हमारे पास, अभी भी हमने फॉर्मूला यूज किया था, तो वो फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग ये प्रॉब्लम्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बाद में इजी प्रॉब्लम्स है, जो कि प्रॉब्लम के सेक्शन में मैं प्रॉब्लम्स आप लोगों को बाद में ले लूंगी। ओके, बट बिफोर दैट, जैसे कि आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम अब आने ही वाली है, तो इस क्लास में आप लोगों को पहले मैं सरफेस टेंशन बाय यूजिंग नंबर ऑफ ड्रॉप्स, मतलब कि रुको एक मिनट, बाय यूजिंग स्टैलेग्मोमीटर कैसे डिटरमाइन करना है वो सिखाती हूँ। और फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं विस्कोसिटी भी कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये बहुत ही अच्छी मेथड है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ मेथड है। ये कौन सी मेथड है? नंबर ऑफ ड्रॉप मेथड। ये पहले वाली कौन सी मेथड थी? पहले वाली मेथड कैपिलरी मेथड थी। सेकंड मेथड कौन सी है? नंबर ऑफ ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड। और थर्ड मेथड जो है वो रिंग डिटैचमेंट मेथड है, बट रिंग डिटैचमेंट मेथड हम पढ़ते ही नहीं है। ओके, एंड नाउ देखिए, ये जो कुछ भी हमारा अब ड्रॉप फॉर्मिंग ट्यूब है, मतलब क्या, ये सारे के सारे आपके ये जो कुछ भी, वेट मिनट, सो देखिए यहाँ पर ये जो कुछ भी हमारे
सरफेस टेंशन होता है, वो सरफेस टेंशन हम बाय यूजिंग सरफेस स्टैलग्मोमीटर डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पर स्टैलग्मोमीटर कैसे होता है, तो कुछ कुछ स्टैलग्मोमीटर हमारे ये पहले डायग्राम के जैसे होता है, नंबर ऑफ ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड जो होती है। तो अब देखिए नंबर ऑफ ड्रॉप फॉर्मेशन जो मेथड है ना, तो ये मेथड है वो। तो ये मेथड से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, अच्छे से सुनो सब लोग। अब इसको ना आप बोलोगे मैम लेबोरेटरी में या फिर हमने जब कभी भी देखा था स्टैलग्मोमीटर तब उसको ऐसा था, तो यस यू आर करेक्ट, बट उसको सिर्फ इन्वर्टेड पोजीशन में दिया है। वो लोगों को ड्रॉप कैसा फॉर्म होता है वो दिखाया है वो लोगों ने यहाँ पे। इसकी डिटेल में डायग्राम है आगे, वो भी मैं बता दूंगी। तो आप लोगों को क्या करना होता है, या आपके पास में स्टैलग्मोमीटर होता है, ऐसे में जो ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, स्टैलग्मोमीटर पे एक ऐसा हॉलो आपका सर्कुलर एक क्या बोलते हैं हम, एक हॉलो स्फीयर जैसे होता है, एंड उसके नीचे में ऐसा एक ओपनिंग होती है जिससे कि आपका लिक्विड नीचे आ सकता है। अब बात आती है यहाँ पर, ये जो बारीक सी आपको पाइपिंग दिख रही है या फिर कुछ तो भी पाइप सर ऐसा दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? अगर से छोटे से ग्लासवेयर में, अगर से अच्छे से देखो सब लोग, मे बी कलर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, डोंट नो। मैं अच्छे से और एक बार ड्रॉ करती हूँ इसको, क्योंकि ये यहाँ पर मैं देखिए, ये आपकी ऊपर अपर एंड बोलते हैं इसको, या फिर अपर मार्क, अपर लेयर है ये। यहाँ पर ऐसी मार्क किए वाली रहती है, यहाँ से मार्किंग स्टार्ट होती है आपके स्टैलग्मोमीटर में। ऐसे स्पेरिकल शेप में आपका स्टैलग्मोमीटर होता है। ये किससे मेडअप होता है पता है क्या आपको? ये सीधे सीधे आपके ग्लास से बनाए वाला होता है, और बहुत ही महंगे होते हैं स्टैलग्मोमीटर। लाइक 2000-3000 का एक स्टैलग्मोमीटर आता है। अब तो उसकी प्राइस और भी बढ़ गई होगी। तो ये जो कुछ भी स्टैलग्मोमीटर होता है, ये स्टैलग्मोमीटर को ये ऐसी ओपनिंग, मतलब नीचे वाला एंड होता है, लोअर एंड बोल सकते हो आप इसको, और ये अपर एंड बोल सकते हो। अपर एंड नहीं बोल सकते हो, अपर मार्क, अपर वाला जो पार्ट है वो है। और अब यहाँ पर ना अपर मार्क होती है, अपर लेयर पे अपर मार्क, लोअर एंड पे लोअर मार्क होती है ऐसे। अब ये मार्क्स क्यों होते हैं, इसकी हेल्प से आपको क्या पता चलता है, इसकी हेल्प से आपको क्या पता चलता है? तो देखिए, ये जो कुछ भी मार्क्स है, इन पर से आप जब यहाँ से अच्छे से देखो, सब लोग कैसे करते हैं ये एक्सपेरिमेंट लैब में। तो एक बीकर लेते हो आप, और उस बीकर में ना एक लिक्विड लेते हो, तो वो लिक्विड आप क्या करते हो, ये यहाँ से आपके स्टैलग्मोमीटर, क्या है ये स्टैलग्मोमीटर, नंबर ऑफ ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड जो होती है, ये नंबर ऑफ ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड इज determined or is carried out by stalagmometer. It is carried out by stalagmometer. So whatever this stalagmometer is there, this stalagmometer is attached to a rubber tube. ये क्या होता है, एक छोटे छोटे से पाइप आते हैं देखो, तो वो रबर से ज्वाइन किए वाला रहता है, और यहाँ पर एक ऐसी पिंच, ऐसा एक क्या बोलते हैं हम उसको, एक क्लोज करने के लिए एक apparatus रहता है। ओके, ये उस जिससे कि हम उसको कंप्लीटली क्लोज कर सके, जिसको कि हम कंप्लीटली क्लोज कर सके, स्क्रू जैसे आता है देखो। ओके, तो स्क्रू जैसा उसको होता है। तो जब आप ये स्क्रू घुमाओगे, आई मीन टू से, जब आप ये स्क्रू ऐसे रोटेट करोगे तो ये पाइप बंद हो जाएगा, और पाइप बंद होने के बाद में यहाँ से जो पानी है वो अंदर आ भी नहीं सकता, बाहर जा भी नहीं सकता। समझ रहे हो? तो अब बात आती है, जैसे कि फिर से आ जाओ इस हमारे एक्सपेरिमेंट में। अब ये हम स्क्रू ढीला करेंगे, और फिर यहाँ से आप पानी नहीं, सॉरी, लिक्विड अंदर ले सकते हो स्टैलग्मोमीटर में, या फिर बाहर भी छोड़ सकते हो अगर स्टैलग्मोमीटर में ऑलरेडी है तो। बट वो कैसे आएगा, जितना अभी ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये है आपकी कैपिलरी, जैसे कि मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपको बोला था। तो ये जो कुछ भी कैपिलरी है ना, तो ये वाली कैपिलरी में से जब आपका लिक्विड जाता है अपर मार्क से, ये तो मार्क करो, या फिर यहाँ पर एक मार्क होती है उसको अपर मार्क कंसिडर करोगे, तो इसको लोअर कंसिडर करो। रुको, मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ। अगर से ये एंड अपर किया, कंसिडर किया, तो यहाँ पर लोअर मार्क कंसिडर करो, या फिर यहाँ पर लोअर मार्क कंसिडर की, तो यहाँ पर आपकी
लोअर मार्क कंसिडर करो। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? अब यहाँ से यहाँ पर आने तक कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स आते हैं? क्या आता है? कितने नंबर ऑफ ड्रॉप, कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स? समझ रहे हो आप मेरी बात? अब यहां से नीचे आते हुए लिक्विड आपका ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है। कैसे आता है बेटा? ड्रॉप्स के फॉर्म में। मैं पिंक पिंक कलर से यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ, देखो। अब ड्रॉप कुछ बड़े हो रहे, कुछ छोटे हो रहे, क्योंकि मैं ये फिंगर्स से कर रही हूँ ना। तो वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने आते हैं, वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमें फॉर्मूला में रखने हैं। किस में रखने हैं? फॉर्मूला में रखने हैं। और फिर इस पर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी गामा, दैट इज नथिंग बट द surface tension. That one is nothing but surface tension. So, see, when you have this number of drops, then you can calculate easily your gamma is nothing but with the experiment and what we want to determine. What can we measure by using थर्मोमीटर? नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने आते हैं उसकी हेल्प से सरफेस टेंशन किसकी है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स की हेल्प से। तो ये से मुझे लगता होती है, उसके सीजीएस यूनिट क्या है, उसके एसआई यूनिट क्या, हम विस्कोसिटी कौन से कौन से अपैरेटस से डिटरमाइन करते हैं, ये सब कुछ सबके बारे में बात करेंगे, बट हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन एंड try to calculate the numericals, and if you are not able to calculate the numericals, or if you are not able to, if you are, तो मैं तो न्यूमेरिकल्स लूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।